بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صلوات قابل قدر علماء کرام، سادات عظام، مؤمنین و مؤمنات، آج شب استشہاد امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، ہم اس مجلس کو نقوی بخاری، سادات کے مرحومین، سادات کرام و مومنین و مومنات کے مرحومین، حضار مجلس کے مرحومین اور خاص طور پر حال ہی میں دنیا سے جانے والے ڈاکٹر ملک فتح خان ابن ملک شیر محمد کی روح کو ایصال کریں گے۔ اللہ کریم مرحوم کے اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ طویل زحمت نہیں، چند منٹ کی گفتگو ہے آج امام علی نقی سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ سب کے شکر گزار ہیں اس مجلس میں تشریف آوری پر، جو لانگ آئلینڈ سے آئے ہیں، جو مینہٹن سے، جو اسٹیٹن آئلینڈ سے، جو بروکلن سے، جو نیو جرسی سے، جو فیلاڈلفیا سے، ماشاءاللہ کافی مومنین سادات تشریف لائے ہیں، مومنات بھی۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے، جزا دے۔ خاص طور پہ ہمارے بزرگ بھائی آغا شوکت جعفری صاحب بڑی صعوبت برداشت کر کے ٹرینوں سے آئے ہیں، حالانکہ ادھر سے کچھ مومنین آ رہے تھے، اللہ ان کو ہدایت کرے، وہ خود بھی لیٹ آئے ہیں، ان کو ہی لے کے آ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں اب مجلس شروع کر رہا ہوں، بغیر کسی مقدمے کے چند منٹ کی جو گفتگو ہے۔ پہلا نقطہ تو میں آج کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے کچھ اماموں کو چھوٹا امام سمجھتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ یہ کلنا محمد کے مصادیق، یہ سارے کے سارے ہی بڑے، یہ سارے کے سارے بڑے، کلنا محمد ہے، سب اولیاء اللہ ہیں، حجج اللہ علی الخلق اجمعین ہے، معصومین ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، اوصیاء سے بھی افضل ہے، اتقیاء سے بھی افضل ہے، ہر دور کے خلفاء سے بھی افضل ہے، ہر مخلوق کے خدا سے یہ 14 افضل اور یہ جو امام ہیں جن کا ذکر کم ہوتا ہے، ان اماموں کے ذکر کے بعد دعائیں جلدی مستجاب ہوتی، اس لیے آپ جب بھی کبھی آپ کو کال دی جائے معصوم یا تالی تلو المعصوم کے دن کی،
तो अकीदत से आए, मिन्नतों समाजतों से नहीं। दूसरा पॉइंट आज की तकरीर का ये है कि हमारे जो इमाम अली नकी अल हादी सलामुल्लाह अलैह, इनके अलकाब में अल हादी है। मैंने देखा जामा में, प्लूरल में, जामा जो प्लूरल होती है यानी मोर देन टू, मैंने अल हादियून, अल हादियीन, अल महदीयीन पढ़ा है ज़ियारतों में, मगर अल हादी 1,24,000 अंबिया में, 13 मासूमों में, मासूम बीबियों में, फरिश्तों में मैंने किसी का लक़ब हादी नहीं पढ़ा सिवाय 10वें इमाम के। यानी अगर मैं ये कहूं कि कायनात में अकेले हादी हैं मेरे 10वें इमाम, लक़बन अकेले हादी, और किसी इमाम का लक़ब हादी नहीं, न किसी मासूम का लक़ब हादी। हालांकि इन्ना अलैना लल हुदा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हिदायत की जिम्मेदारी तो हमारी है, हम खालिक हो के जिम्मेदार हैं हिदायत के। तो हर एक जो गाइड करने वाला है, गाइड, उसको हादी कहते हैं। हर एक हादी है, सारे अंबिया हादी आए ही हिदायत के लिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम दिन में कितनी मरतबा हम पढ़ते हैं। हर मासूम हिदायत के लिए आया, मगर अल हादी लक़बन सिर्फ एक है। तो मैं ये समझता हूं हर मासूम थ्योरी समझाने आया था, मेरा 10वां इमाम प्रैक्टिकल समझाने आया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद रहे, बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। ये इमाम अल हादी है, ये इमाम अन नकी है। नकी का माना नकी का, इसी से नकवी, उसूली तौर पे तो होना चाहिए नकवी, वैसे अब हो गए हैं नकवी। अब ये नकवी साहब है, ये आगा भी मौलाना भी नकवी साहब है, हालांकि होना तो चाहिए नकवी, NAQAVI होना चाहिए, मगर जाहिर सी बात है अब हो गया है तो क्या करें। अच्छा, बुखारियों के जद्दे आला भी यही है, बुखारियों के। बुखारी भी ठीक नहीं है, नाम ठीक नहीं है, वैसे बुखारी ठीक है, बुखारी तो हमेशा होती ही सही है। गलत बुखारी तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। तो ये बुखारी दरअसल ठीक नहीं, असल में होना चाहिए बुखाराई। हाँ, बुखारी गलत है। हाँ, ये जो याय निस्बत जो लगती है ना, ये बुखाराई होगा। हाँ, ये मेरा भी जो नाम है ना, ये भी गलत है। देखिए, मैं वाहिद मौलवी हूं जो अपनी गलतियां बताता हूं। ये संदरालवी गलत है, असल में है संदराल, तो संदराल से बनेगा संदराली। अगर ये संदराला होता तो होता संदरालवी। जैसे बरेली से बनता है बरेलवी, मसलन लखनवी, ये संदरालवी नहीं है। ये हमारे एक इनके हमसाए हैं मौलाना अजहर शाकरी साहब, वो हमसे सीनियर थे 8-10 साल। ये किबला जो हमारे हैं जिनके फर्जंद आज नहीं आ सके, अल्लामा साहब जो बुखारी साहब, उनके वो दोस्त थे, उनसे वो जूनियर थे, तो हमसे तो बहुत सीनियर थे। उन्होंने रखा अजहर हसन संदरालवी। ये मुझे बड़ा प्यारा लग गया, तो मैंने स्कूल के ज़माने में इनसे कहा कि आप मुझसे हदिया ले लें, ये मुझे वापस कर दे। तो इस तरह मैं वही गलत नाम आज भी चला रहा हूँ। तो खैर, असल में तो ये बुखाराई है, बुखारी नहीं। असल में नकवी, नकवी, नकवी नहीं, बस वो बाकी तो नहीं, इतना ही। अच्छा, फिर ये नकी है, नक्की नहीं है। हमारे कई भतीजे हैं जो कहते हैं मैं नक्की बोल रहा हूँ, वो नक्की नहीं है, नक्की गलत है लफ्ज़।
नकी लफ्ज ही कोई नहीं, नकी है, नकी नकी। जैसे अली को हमारे कई लोग नहीं बोलते अली, मैं अली शाह बोल रहा हूं, अली शाह नहीं होता, अली होता है। और ये नुक्ता भी आज सुन लीजिए, ये अली और नकी सिफत मुशब्बहा है, इसमें मजीद गुंजाइश नहीं होती मैक्सिमाइजेशन की। ये है रिसर्च वर्क। तो दूसरा नुक्ता यह है कि इमाम का नाम है अली, लक़ब है नकी, दूसरा लक़ब है हादी। आपने कोई हादवी सुना है? हादवी नहीं सुना? मैंने सुने भी है, देखे भी है। ईरान में नकवियों को कहते हैं हादवी। हाँ देख लेना फिर आप, हादी से है हादवी, नकवी और हादवी। हमारे बल्कि ईरान के एक चीफ जस्टिस भी रहे हैं नकवी, यहां आए भी थे, याद होगा? नहीं, यहां मिले थे आप। ये आयतुल्लाह सैयद नियाज हुसैन नकवी, ये हाँ चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ये अलीपुर के हैं, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के, मगर अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि वो ईरान में अरसे दराज तक चीफ जस्टिस रहे, रिटायर हुए वहां से। तो वो भी वैसे वहां ईरान में नकवी नहीं होते, हादवी होते हैं। नकवी हमारे यहाँ होते हैं, इराक में नकवी भी हैं, इराक में हादवी भी है। चलिए, ये तो थोड़ा सा रिसर्च। हमारे आगा कहते हैं कि आपकी मजलिस जो है ना वो आम नहीं होनी चाहिए, स्पेशल। आगा आए हैं तो फिर जाहिर है आगा भी स्पेशल है और हम भी स्पेशल हैं। तो जी हाँ, अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे। इनकी आंखों की जो परेशानी है, हमारे सैयद जैगम की भी ये आंखों की परेशानी है, और हमारे जो राजा साहब के जिया फर्जंद हैं उनकी भी अल्लाह ताला आंखों की, सबकी जितने भी लोग आंखों की परेशानियों में मुब्तला है, हमारे ज़की शाह साहब भी हैं, अल्लाह ताला, और आगा मुख्तार को भी अल्लाह शिफा दे। और जितने भी मोमिनीन अलील हैं, नाम बनाम, नाम नहीं लेता मैं, बस सिवाय हमारे मेराज जाफरी साहब हैं, या सुंदुस कमल चट्ठा है, या खुद हमारे हाजी नज़ीर चट्ठा है, अल्लाह ताला इनको शिफाए कुल्ली रहमत फरमाए। सजाद शाह साहब को भी, इनकी वालिदा गिरामी को भी, अब्बास अली शाह साहब को भी, इनकी हमशीरा को भी अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। मैं इसलिए भी ये शिफा की दुआ नहीं कराता हूँ ज्यादा कि एक बंदा 90 में नाराज हो गया, 90 में आज तक नाराज, अभी वो दुनिया से जाने वाला है। हम भी तकरीबन पाबरकाब हैं, जाहिर है बूढ़े हो गए हैं, अभी भी वो राजी नहीं हुआ कि आपने मेरे बारे में क्यों कहा कि दुआ करें, मैं बीमार हूं। मैंने कहा बीमार नहीं है, कहते मैं बीमार हूं, मगर मैंने दुआ नहीं करी थी। लोगों को धोखा देना है कि बीमार नहीं, तो मैं इसलिए भी डरता हूं कि कोई धोखे वाला मेरी दुआ में ना आ जाए, इसलिए नाराज नहीं होना। जो कहेगा मैं उनके लिए जरूर करूंगा। चलिए, हमें जल्दी जल्दी दूसरा नुक्ता समझ में आ गया, नकी हादी, नाम है अली। तीसरा नुक्ता, तीसरा पॉइंट आज की मजलिस का देखिए, ये अली का जो नाम है ये रिपीट हुआ है 14 मासूमीन में, अली का नाम रिपीट हुआ है, मोहम्मद का नाम भी रिपीट हुआ है, हसन का नाम भी रिपीट हुआ। आगा बताएंगे कि मोहम्मद कुल कितने हैं 14 में, और अली कितने हैं? 3 है या 4 है? फिर सोच ले, 4 3 है 4, बताएं कौन कौन से? अली मुर्तजा, अली जैनुल, अली रजा, अली नकी, 4 हो गए ना। देखे अल्लाह का निजाम है ना, उसने 4 मोहम्मद रखे हैं तो 4 ही अली रखे। क्या अली ठीक हो गया जनाब? बिस्मिल्लाह शाह जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। तो 4 ही मोहम्मद, 4 ही अली, ये हो गए 8 हो गए ना। 6 और कौन से हैं? उनमें 2 हसन हो गए 10, एक बीबी पाक हो गई 11, एक मौला हुसैन हो गए 12, एक जाफर 13, एक मूसा 14। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तीसरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि 4 ही मोहम्मद, 4 ही अली।
दो हसन, ठीक हो गया। मगर अजीब इत्तेफाक है, फातिमा दूसरी कोई नहीं, हुसैन दूसरे कोई नहीं, जाफर दूसरे नहीं, मूसा दूसरे नहीं। ये भी है इत्तेफाक है ना, ये भी। ये काज़मी सादात जो है, आजकल काज़मी सादात को एक मलून गालियां दे रहा है नामूस की, अल्लाह उसको गर्क करे। आज मैंने उसके लिए बद्दुआ की है, पहले समझाया है और आज बद्दुआ की है दर्स में। जल्द इंशाल्लाह उस मलून को बद्दुआ लगेगी। वो नामूस की गालियां बक रहा है बेचारे मूसवी और काज़मी सादात को, अल्लाह ताला उसको गर्क करे। और सारे के सारे सिपाही साहबा वालों को, लश्कर जंगवी वालों को, मलूनों को, दाइशियों को, अलकायदियों को, तालिबानियों को, सबको अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। और सादात कराम का बख्त इकबाल हमेशा उजागर रहे। वो मूसवी काज़मी हो या नकवी बुखारी हो या दुनिया के जितने भी सादात जाफरी हों, जो भी हों, अल्लाह ताला ज़ैदियों को भी जिंदा और सलामत रखे। तीसरा नुक्ता ये आ गया आपकी खिदमत में। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जरा, ताकि याद भी रह जाए। चौथा नुक्ता जरा सुनिएगा। वो ये है कि ये कम पढ़ा जाता है, इनका जिक्र ही कम होता है इन इमामों का। आपने देखा नहीं, आज भी पढ़ने वालों में कितने लोग हैं जिन्होंने इमाम अली नकी पे पढ़ा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जी, दो लोगों ने, शाह जी फरमा रहे हैं, ताजीम शाह जी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगला जो जश्न पढ़े ना आप, जैसे कब है, जुमेरात को शब जुमा में किनका है, इमाम अली नकी के बारे में सब पढ़े। जरा मेहनत भी करें ना, बाकायदा मेहनत करके आए। जिस इमाम का हो, पोएट्री भी उस इमाम के बारे में हो ना, ताकि कुछ इल्म भी बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक किताब भी लिखी है, आपने देखी हो, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पे मैंने एक किताब भी लिखी है, शुक्र खुदा। तो चौथा नुक्ता ये है कि एक लक़ब और है जो कम पढ़ा जाता है, आज सुन लीजिए, वो है मुर्तज़ा। हाँ, इन इमाम का लक़ब है मुर्तज़ा। गोया लक़ब भी रिपीट हुआ, मुर्तज़ा, वो मुर्तज़ा और ये मुर्तज़ा, लक़ब भी रिपीट हुआ है, सिर्फ नाम ही रिपीट नहीं हुए, मुर्तज़ा का लक़ब भी रिपीट हुआ है। तो ये अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि हमारे इमाम अली नकी अल-हादी अलैहिस्सलाम का एक लक़ब मुबारक मुर्तज़ा है। इस पर किताबें लिखी गई, सिर्फ अलक़ाब आइम्मा पे, अलक़ाब मासूमीन पे बड़े बड़े वालियूम लोगों ने लिखे। मैं आज यही मुताला कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे भी और यहाँ लाइब्रेरी में भी। तो ये चौथा नुक्ता हो गया, आप इसको जरा जहन में रख लें। पांचवा नुक्ता ये है कि हमारे कुछ इमाम वो हैं कि जिनको तस्नियतन, टाइटल वाइज, डुअल के साथ अलकाब वाइज याद किया जाता है। जरा उनको भी आज गिन लेते हैं। ये पांचवा नुक्ता है। मसलन हसनैन शरीफैन कहते हैं ना, हसन और हुसैन को हसनैन नहीं है। हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनका नाम वो हसनैन है, हसनैन है ही कोई। मैंने तो आज तक ये एक मैंने राजा साहब को देखा था, इनके वालिद साहब को, मैं उनकी रूह को मैं आज भी सलाम करता हूं कि उन्होंने इनका नाम जो रखा ना, वो हसन नहीं रखा, हसन रखा, HASA, वरना तो अमूमन HASSAN होता है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। हसन लफ्ज ही कोई नहीं, हसन हसान है या हसन है या हसान है, वो हसान इब्ने साबित, आप जानते हैं माशाअल्लाह। तो हसनैन, ये जवान बच्चों के लिए भी क्लास हो जाती है, इनको पता भी चल जाए कि जब कभी अपने इमामों को पुकारें तो कैसे, हसनैन, हसनैन नहीं, हसनैन, सीन के ऊपर फतह है, जबर है। ये हो गए दो। इन दो भाइयों को हसनैन या सिबतैन, या मसलन कुछ दो वजूद हैं, यूं कहूं मैं, एक वजूद को कहते हैं, दोनों वजूदों को कहते हैं सकलैन। सकलैन, आपको इल्म है कि जो सकल, ये जो मुफरद है, ये सकल नहीं है, ये सिकल है। यानी अजीब है अरबी, सिकलैन नहीं है, सकल है। ये आपको जरा फायदा देगा, ये जो इशू है, सकलैन, हसनैन। अच्छा, इसी तरीके से
कुछ ऐसी नमाजें हैं जैसे ज़ोहरैन है ना, मगरिबैन, फजरैन कभी सुनी? फजरैन कभी नहीं। जी हमारे एक शागिर्द थे, हम जरा मिजाहिया तबीयत के भी हैं। मैंने एक दफा कहा कि फजर की जमा बताओ, उसने कहा फजूर। मैंने कहा शाबाश। मैंने कहा अल्लाह के अच्छा नूर पढ़ेगा इंशाल्लाह, नोहा पढ़ेगा मुख्तसर पढ़ेगा मगर नोहा पढ़ेगा। थोड़ा सा देर हो गई इसको, इसलिए इसने मनक़बत नहीं पढ़ी, तो इंशाल्लाह नोहा ये पढ़ लेगा। तो आज देखें ना माशाल्लाह कितना हमने वक्त पे ख़त्म कर दिया। हम वक्त पे शुरू करेंगे। हमारी बहनों बेटियों ने कहा कि अगर आप वक्त पे शुरू करें, शुरू देर भी करें, वक्त पे ख़त्म कर दें, हम सब आएंगे। आज माशाल्लाह बहुत आई हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ताउन करें इसमें। आपकी एक तो पढ़ने वाले थोड़ा मुख्तसर पढ़े, आज बहुत सही पढ़ा आपने, बेहतरीन पढ़ा। मैं भी इंशाल्लाह मुख्तसर पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे और बेहतरीन जश्न भी होगा, बेहतरीन मजलिस भी होगी इंशाल्लाह। क्या फरमा? अरे खुश हैं, खुश हैं। क्यों आगा ने मुझे कहा एक दफा कि आप ये कहते हैं कि नारा कोई ना लगाए। मकसद इनका ये नहीं था खुदा न खास्ता कि ये नारे को नहीं मानते, ये चाहते थे कि जरा जिस तरह लखनऊ वगैरह में मजालिस होती हैं सलवात वाली, नारे नहीं होते वहां पर। तो मैंने इनसे कहा मैं बिल्कुल कहूंगा आप बड़े भाई हैं, मगर कहा तब जब मजलिस खत्म हो गई। तो आप भी जरा नारे लगाते रहे, बाद में कहूंगा। तो आज के जो ये मैं पांचवा पॉइंट अर्ज कर रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। हसनैन, सकलैन, सिबतैन, नय्यरैन, शमसैन, कमरैन। हाँ वो अभी आ रहा हूं, आगे मैं आ रहा हूं किया। इसके बाद आप देखते जाए, मसलन आप देखिए उसके बाद कौन से दो इमाम हैं जिनको दो काज़िमैन या जवादैन, काज़िमैन या जवादैन। उसके बाद कौन से हैं? अस्करियैन या नकीयैन, हादियैन भी, हादियैन भी आज ही पढ़ रहा था। तो ये तस्निया के साथ लक़ब जो मशहूर होते हैं वो भी हमारे कुछ इमामों के हैं, सब के नहीं, कुछ इमामों के ये लक़ब भी है। ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब आ जाइए छठा पॉइंट आज की मजलिस का। वो ये है कि एक साहब हैं, उनका नाम है अबू हाशिम। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और बिहार भी मेरे पास मौजूद है, पूरी बिहार में भी है, अरबी वाली बिहार में, उर्दू वाली भी मुझे नहीं पता, अरबी वाली बिहार में ये है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है इसको। वो ये है कि अबू हाशिम जो इमाम अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द हैं, एक अजीज हैं, एक खादिम हैं, एक सहाबी हैं, एक नौकर है। हमारे जितने भी असहाब हैं ना अइम्मा के, याद रखिएगा वो सहाबी से ज्यादा गुलाम कहलवाना पसंद करते थे। ये तरबियत का पहलू है। आप जब मजलिस अज़ा में आए, फर्श अज़ा पे आए, मस्जिद इमाम बारगाह में आए, हुसैनिया में आए, तो आप नवाब बन के ना आए, खादिम बन के आए, जारूब कश बन के आए। हमारे आइमा उनमें एक अबू हाशिम, इनकी काफी लंबी उम्र भी हुई है, काफी लंबी इनकी उम्र हुई है अबू हाशिम की। ये हाजिर खिदमत हुए और बड़े डिप्रेस थे, जैसे मैंने भी देखा है कई मरतबा हमारे दोस्त अब आप भी बड़े डिप्रेस होते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यकीनन पूछा होगा कि आज खैरियत तो है, डिप्रेस क्यों है? तो उन्होंने कहा कि सरकार डिप्रेस इसलिए है कि मैं रहता हूँ बगदाद में, आप हैं सामरा, तो घोड़ा जिससे मैं आता हूँ, उस जमाने में घोड़ों से आते थे, सवारियों से, दराजगूश से आते थे, समझ आइएगा, जो पैगंबरों की सवारी थी दराजगूश से आते थे, या दराजगूश्त और जो दरमियान में एक होता है उससे आते थे, घोड़े के दरमियान। तो ये
मेरी जो सवारी है ये बड़ी कोई कुंद रफ्तार है, बड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में पहुंच सका हूं। जैसे हमारे भी लोग हैं, उनकी सवारियां भी बड़ी कुंद रफ्तार है, कभी मजलिस में टाइम पे नहीं आते, कभी दर्स में टाइम। हाँ, वो वही अबू हाशिम वाला ग्रुप है, समझ लीजिए कि सरकार, जी हाँ, कि सरकार पे मैं बड़ा परेशान हूँ कि अब मैं कितनी बार आपकी खिदमत में आऊँ। तो सरकार ने यकीनन पूछा होगा, रिवायत का मैं तर्जमा हमेशा अपने अल्फाज में करता हूँ समझाने के लिए, कि ये बताओ कि हफ्ते में, महीने में, साल में कब हमें देखना चाहते हो, बता तो दो ना, कब चाहते हो कि हमें देखो, तो हम कुछ इंतजाम कर दें तुम्हारे लिए राइड का। जैसे हमें पता होता तो हम आगा के लिए राइड का इंतजाम कर देते, तो हम राइड का एहतमाम किए देते हैं। तो उसके मुंह से यकीनन ये निकला होगा कि कुल यौम, आप जैसी हस्ती की जियारत कोई हफ्ते में होती है, हर रोज, हर रोज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नहीं पढ़ते जियारत हर रोज, आप जियारत हर रोज पढ़ते हैं ना, कई बार पढ़ते हैं। आप इमामों को चाहते हैं सरकार कुल यौम, मैं तो ये चाहता हूं अजूर का कुल यौम, हर रोज आपकी जियारत देखूं, आपका चेहरा मुबारक देखूं। आपने कहा जाओ, आज से हमने तुम्हारी सवारी की नेचर बदल दी। कैसे नेचर बदली है? कहा कल आना तो बताना कि नेचर कैसे बदली है। अब वो अबू हाशिम कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहा, तवज्जो, जब तक मैं जिंदा रहा मैं एक नमाज पढ़ता था बगदाद में, दो जाके पढ़ता था मदीने में, दो पढ़ता था इमाम के पीछे साबर रहा, डेली डेली। माशाल्लाह आपके पास भी अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे मलिक जी के पास तो कमाल की गाड़ी है। जी हाँ, बड़ी अच्छी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी गाड़ियां दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके पास बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं। तो अब देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये सवारी क्या इमाम की है, मासूम की है, कायम मकाम मासूम की है, बाई बर्थ मोमिन की है या कन्वर्टेड की है, अहले बैत में से है या दूर वाला है? आज तक ये अहमक बुराक में उलझे हुए हैं, कैसे गए? अहमको अली नकी को देखो, गुलाम की सवारी को बुराक बना दिया। वहां तो फरिश्ता आया था एस्कॉर्ट करने के लिए, जैसे राशिद जैदी ने एस्कॉर्ट किया हमारे आगा शौकत को, वहां तो फरिश्ता आया था। यहां तो कोई फरिश्ता नहीं है ना, यहां तो इमाम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया, हम तुम्हारी सवारी की नेचर को बदल देते हैं। मैं आज की मजलिस में कहूंगा सरकार, आपने अगर सवारी की नेचर बदली है तो हमारी नेचर भी बदल। यानी आहली लीजिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुलाजा फरमा रहे हैं ना, ये अबू हाशिम है। एक साहब और हैं, उनका नाम है इब्ने जैद। ये मैं लफ्ज बलफ्ज जो रिवायतें बयान करता हूं ताकि एक तरफ तो ये आपको यकीन हो कि पढ़ के बयान कर रहा हूं, बना के नहीं पढ़ रहा। मैं बनाने वाला नहीं हूं, बनाने वाले तो वो सवाते मुक़द्दसा है, जो लिखा है लफ्ज बलफ्ज। इब्ने जैद नाम इनका मिला नहीं, इब्ने जैद ही मिला, तो वही पढ़ रहा हूं मैं। इब्ने जैद की एक रिवायत है कि हम हाजिर खिदमत हुए इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में सामर्रा में, और हम थे भूखे, कुन्ना जुआन, हम सारे के सारे भूखे थे। बड़ा मेरा दिल चाहा कि सरकार से आज कुछ तलब करें, कुछ खाना सरकार के पास खाएं। तो थोड़ा सा मुझे हया आ रही थी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मेरी तरफ देखा कि जैसे वो पूछना चाहते हो कि क्या चाहिए। देख लीजिए, ये है हमारे इमाम। दुनिया ने जो इमाम बनाए हैं
वो जाहिर नहीं पढ़ सकते, हमारे इमाम वो हैं जो दिल पढ़ लेते। तो मैंने कहा सरकार, तलब तो ये है, डिमांड तो ये है, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, भूखे दोस्त हैं कुछ भूखे। तो फाशार अल इमाम इलल अमूद, एक सुतून था आपके घर में, बैतु शर्म में कितना बड़ा होगा, छोटा सा सुतून, घरों के सुतून कितने बड़े होते हैं। अस्सलातो नहीं, अमूद, अमूद इमाद भी है, ठीक है, इमाद भी ठीक है, इमाद भी है, अमूद भी है, दोनों भी दुरुस्त है। जा खैर मिना नौम नहीं है जी वो जी हाँ जी हाँ। अब जनाब खत्म करें, क्योंकि माशाल्लाह न्याज आ चुकी है, ज्यादा मैं जहमत नहीं देना चाहता। मैं शुक्रगुजार भी हूँ आप सबका, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह करीम आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इसी तरह सेंटर में आते रहे ताकि सेंटर की रौनकें बहाल रहे, हमारे पाक हस्तियों का जिक्र होता रहे इसी तरीके से। तो जिन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह उनका भी शुक्रगुजार हूँ जी, बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये टीवी वाले सोए पड़े हैं, बड़ी मेहरबानी आगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आगा शौकत जाफरी साहब ने तमाम न्यूयॉर्क वालों की तरफ से, न्यू जर्सी वालों की तरफ से, फिलाडेल्फिया वालों की तरफ से, हाजरीन की तरफ से, मोमिनीन मोमिनात सादात, ठीक ठीक अभी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे जिस जिस मोमिन मोमिना ने, क्योंकि फातिहा हो चुका है, इंशाल्लाह एंड में फिर पढ़ते हैं। जी मैं ज़रा ये गुफ्तगू मुकम्मल करूँ। आगा ने बड़ा खूबसूरत दर्स के बाद भी और अब भी बेहतरीन फातिहा हुआ माशाल्लाह, और 200 कुरान भी हमने ख़त्म करवाए हैं यतीम खाने से, यतीम खाने से 200 कुरान भी ख़त्म हो गए, और ख़ुद सनराल में भी 20-25 कुरान कम अज़ कम ख़त्म हो चुके हैं। जी जी बस मैं अभी इजाज़त दे दीजिए, टाइम इतना ही है, आगा वादा किया था 7 से ऊपर टाइम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज की हद तक मैं जल्दी आपसे इजाज़त ले लूँ। ये जो 1-2 पॉइंट हैं जल्दी जल्दी सुन लीजिए। तो ये जो इब्ने ज़ैद है, ये कहते हैं कि मैं भूखा था, हम भी भूखे थे, लोग थे काफ़ी, तो इमाम अलैहिस्सलाम के बैतुल शर्फ में आए, इमाम से कहा हमें खाना चाहिए। हमने बाकायदा कहा कि नूरीदु ताम, हमें ताम चाहिए सरकार। फ़अशार अल इमाम इलल अमूद, वही इमाद अमूद और भी अल्फाज है, मैं हाँ सुतून, सुतून उस्तवाना भी कहते हैं, इलल उस्तवाना, उस्तवाना भी कहते हैं, उस्तवाना तो तौबा, शाबाश। तो ऐसे ही जब उन्होंने पिलर की तरफ इशारा किया तो पिलर खुल गया, जन्नत के खाने लग गए। ये है इमाम अली नकी, ज्यादा आवर लगाने से रिस्क नहीं आता, इमाम अली नकी के इशारे से रिस्क मिलता। रुम्मान भी आ गए, अल्लाहु अकबर। इलाही आमीन, इलाही आमीन, अल्लाह ताला शिफा कुली दे, खुद आपको भी अल्लाह शिफा, आपकी बेगम साहबा, आप खुशदामन को। इधर से शायद आप भी ले लें, आप भी ले लें। देखिए आप माशाअल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप इमाम अली नकी अल-हादी अलैहिस्सलाम की मजलिस में तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ गाँव में, हमारे गाँव का एक रवाज है कि जब जनाजा होता है, बता रहे थे कि बहुत ही बड़ा जनाजा था,
بہت بڑا جنازہ تھا ان کا جو جنازہ ہوا. تو ہمارے ہاں عموماً یہ رسم ہے ہمارے پاس کہ ہمارے گاؤں میں جب کوئی لوگ جنازے میں آتے ہیں تو باقاعدہ جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ لسٹیں تیار کرتے ہیں. لسٹیں کیوں؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ رجسٹر لے کے کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو واپس احسان واپس کرنا ہوتا ہے. ہم جیسے جو ان پڑھ لوگ، ہم جیسے گاؤں کے گمار قسم کے دیہاتی، اگر ہم میں اتنی شرافت ہے کہ ہمارے ہاں جنازے میں یا قل میں یا سوئم میں یا تعزیت میں یا ہمارے ہاں جو فاتح خانی میں کوئی آ جائے تو ہم اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ ان کے نام لکھ لو تاکہ ان کا رد احسان کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے نوکر جبریل جیسے ہوں وہ نام نہیں لکھتے ہوں گے کہ کون کون ہماری مجلس میں آیا؟ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ یہ جو وقت آپ دے رہے ہیں، یہ وقت میرے دوست ہیں آغا علی حسین، وہ ہمیشہ ایک روایت پڑھتے ہیں. جی ہاں، وہ فرماتے ہیں اللہ ان کو شفا دے، وہ کہتے ہیں جتنا وقت آپ آزاداری میں دیتے ہیں اللہ آپ کی زندگی سے منہا کر کے اتنا بڑھا دیتا. آپ خوش قسمت ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. بس آج میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں. ایک مرتبہ ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، 2-3 منٹ میں فارسی میں بیان کر دوں گا جو فارسی زبان ہے، اور میں مصاحب کے 2 جملے پڑھتا ہوں. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تقریر تمام ہوئی. جو ٹاپک تیار کیا تھا وہ تو پڑھ ہی نہیں سکے. چلیے کچھ 6 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیے گئے. اب آخر میں ایک گزارش بھی آپ سے کروں گا کہ کسی کی بھی ڈیتھ ہو، جنازہ ہو، اس کو اہمیت دیں. یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں پر لوگوں میں بہت نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. جنازوں کو اگنور کرتے ہیں، فواتح کو، مجالس فاتحہ کو اگنور نہ کریں، ائمہ کے دنوں کو اگنور نہ کریں، مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آج ہمارے حاجی رزاق نے بھی یہی کہا، ملک امیر خان نے بھی درس میں یہی کہا کہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. دور ہونے کی وجہ کچھ تو مشکوک غذائیں ہیں اور کچھ ناجائز دوستیاں ہیں. ناجائز دوستیاں وہ ہوتی ہیں جو دوست آپ کو گناہ میں مدد کرتے ہیں، ثواب میں مدد نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنوں کے بھی غم میں شریک ہوں اور محمد و آل محمد کی خوشی غمی میں بھی شریک و شامل. بس میں 2 جملے کہوں گا، طویل زحمت نہیں. سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت جو فرش عذاب ہے، مومنین ہیں، سادات ہیں، مومنات ہیں، بچے بچیاں ہیں، بزرگ خرد ہیں، علماء، طلباء، عزادار، اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو بتلائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب مریضوں کو شفایاب فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کے گناہ معاف ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں آج کی شب امام پاک ہمیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے.
इमाम की जो आज़ादारी हमने कही है, रिज़्क़ माल अहलो याल में बरकत हो, लंबी उम्र दे अल्लाह बरकत के साथ, कर्ज़े अदा हो, मुश्किलात हल हो, हज ज़ियारात नसीब हो, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो, और हम सबको अल्लाह आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। तकरीर तमाम हो गई और माशाल्लाह खलीफा साहब ने इशारा फरमा दिया है कि नियाज काफ़ी देर से मुंतज़िर है, तो मैं तवील ज़हमत नहीं देता, दो जुमले कहता हूँ। एक जुमला, पहली मरतबा ये जुमला मैंने ही कहा था, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में गुर्बत इमाम के ख़ानदान की इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो कायनात को खिलाने वाले थे, कायनात को ढांपने वाले थे, उनके घर में कुल बीबियों की, ख़वातीन की तादाद थी 20, और वो एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकती थी। चादर कुल एक थी जिसमें नमाज पढ़ी जा सकती थी। अंदाजा लगाइए, बारी बारी नमाज पढ़ती थी। ये हाल कर दिया था बाइकाट करने वालों ने, खुम्स न देने वालों ने, सादात का हक लूटने वालों ने। और आखिरी जुमला ये कहूँगा कि अगरचे इमाम को जहर दिया गया, जहर हिलाहिल दिया गया, जिगर के टुकड़े कट के बाहर आए हैं, तश्त में खून भी है, तश्त खून खून हो गया है, मगर आपके साहिबजादे हमारे 11वें इमाम ने जनाजा भी पढ़ाया, तदफीन भी हुई। रोज़ा आज मरजाए खलाइक है, ला यौम का यौम का, या अबा अब्दुल्लाह। करबला में कोई नहीं था जो आगे बढ़ के आबिद बीमार से कह देता ये 2.5 गज का कफन ले लो, ये नमाज पढ़ा लो। कैदियों को भी पेरोल पे इजाजत मिलती है, मगर ये कैसे जालिम थे जिन्होंने हुज्जत खुदा को भी पेरोल पे हुज्जत खुदा का जनाजा पढ़ने की इजाजत न दी। वहां पर लाशें तड़पते रहे, बहनें सिसकती रही, बेटा पोता रोता रहा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातमे हुसैन।